اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سرحدوں کی حفاظت پر جو آنکھ جاگتی رہی اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. نہ دل ہوتا نہ دل روتا نہ دل دل سے جدا ہوتا. نہ دل ہوتا نہ دل روتا نہ دل دل سے جدا ہوتا. نہ تم اتنے ہنسی ہوتے نہ ہم تم پہ فدا ہوتے. بی بی شیرینی زیلی گلی لبان دیوا چوا سرشال جوڑا لسنا. بی بی شیرینی 44 جو ہے نا عیدیں آ گئی تو 30 تقریباً عیدیں میں نے جو ہے نا اپنی ملک کی سرحدوں کی حفاظت پہ گزاری ہے. یہ جو وردی ہم نے پہنی ہے نا یہ کفن ہے. گھر سے بھی اور بھابھی کی طرف سے آپ کی بھابھی کی طرف سے بھی بہت سختی ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں سے دور بارڈر پہ کھڑے تعینات ہو کر 24 گھنٹے کے لیے ڈائمنڈ سائرن ہیں اور یہ لوگ بالکل بے فکر ہو کے اپنی عید کی خوشیاں منائیں. ہم ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر پاکستان زندہ باد. جی بالکل، آج ملک بھر میں عید قربان کا دن انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. عید اضحیٰ کا دن یہ وفا، محبت اور قربانی کا درس دیتا ہے اور آج کے دن پاکستانی اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں بانٹ رہے ہیں. مگر آج ہم آپ کو ایسے عظیم لوگوں کے ساتھ ملوائیں گے کہ جو اپنی خوشیاں، جو اپنی عید اور اپنے اہل خانہ کو پیچھے چھوڑ کر ہمارے لیے ہماری سرحدوں پر حفاظت کر رہے ہیں اور میرے اس ملک کے جو سپوت ہیں وہ کس طرح حفاظت کر رہے ہیں اور آج کے دن وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ارسلان، اور آج ہم آپ کو اپنے فوجی نوجوانوں سے ملائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ وہ اپنی عید کا دن کس طرح سے گزارتے ہیں، کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی، کیا ایسی چیزیں وہ کرتے ہیں جو ان کے لیے یہاں پر بوریت کا سامان نہیں ہوتی بلکہ انٹرسٹنگ ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر سگنلز نہیں ہوتے، یہاں پر ان کے پاس موبائل فونز نہیں ہیں، گھر والے نہیں ہیں، تو ان کی عید اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کیسی ہوتی ہے. اور بالکل مریم، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی زندگی کی پہلی عید جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کے ساتھ، اپنے اس وطن کے محافظوں کے ساتھ اس عید کی نماز ادا کروں گا اور دیکھوں گا کہ جب وہ عید کی نماز ادا کرتے ہیں تو تب ان کے چہروں پہ خوشیاں کس طرح ہوتی ہیں، یا پھر اس وقت وہ اپنے پیاروں کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں، کیا احساسات رکھتے ہیں. تو آئیے آج کے ہمارے عید کے اسپیشل پروگرام میں ہم جانتے ہیں اپنے نوجوانوں سے کہ وہ عید کا دن کیسے گزارتے ہیں. اور آپ سب کو اس سے پہلے ہم دونوں کی طرف سے عید مبارک. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بالکل، اس وقت میں نے اپنے وطن کے نوجوانوں کے ساتھ، اپنے وطن کے سپوتوں کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی اور ہمارے ساتھ اس وقت ہارون صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہاں پر اپنے گھر والوں سے بغیر اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس چیک پوسٹ پر عید قربان کی جو نماز ہے اسے ادا کیا گیا ہے. تو اس وقت ان کی فیلنگز کیا ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟
जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, आज तो सभी लोग जो हैं वो अपने प्यारों के साथ खुशियाँ बांट रहे हैं, ईदें मना रहे हैं और ईद कुर्बान सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अदा की जा रही है, और आप यहाँ पर आज ईद उल अज़हा के दिन भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल। तो सर क्या कहना चाहेंगे, अभी क्या फीलिंग्स हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इस चीज़ का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने ऐसी अच्छी और खूबसूरत ड्यूटी अल्लाह पाक ने हमें दी है, तो इसका हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। ये एक ड्यूटी नहीं है, इबादत है, और हम मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। और हमें बुज़ुर्गों ने यही बताया है कि पिछले जितने भी अपने मुसलमान भाई हैं, जितने भी अमाल करेंगे उन सब का सवाब आपको हासिल होगा। तो ये एक इबादत है, और हदीस शरीफ का मफ़हूम भी है कि सरहदों की हिफाजत पर जो आंख जागती रही उसके ऊपर जहन्नम की आग हराम है। तो हम सब जो है ना, हमारा बड़ा हाई मुराल है और हम सब खुश है। तो बाकी जो है ना, पीछे घर वाले और बच्चे तो याद आते ही है। बिल्कुल ऐसे। जी अच्छा, कितनी ईदें इसी तरह आप इसी मस्जिद में पढ़ते हुए गुजर गई? जी मेरी कोई 22 इयर्स सर्विस है, तो तकरीबन ज़्यादातर ईदें जो है ना हमने बॉर्डर पे गुजारी है। तकरीबन 10 से 15 ईदें तो आपने यहीं पर ही पढ़ी? जी सर, इससे भी ज़्यादा है। इससे भी ज़्यादा? अगर 22 साल की आपकी सर्विस है तो उसमें से आपने तकरीबन 15 से भी ज़्यादा ईदें यहाँ पर पढ़ी? जी बिल्कुल, 22 की आप कर ले तो 44 जो है ना ईदें आ गई, तो 30 तकरीबन ईदें मैंने जो है ना वो अपनी मुल्क की सरहदों की हिफाजत पे गुजारी है। क्या बात है। नाज़रीन, यहीं पर हमारे साथ नौजवान भी मौजूद हैं। तो अभी ईद नमाज अदा हो चुकी है, तो हम बाहर निकलेंगे, आज किन की एक्टिविटीज़ देखेंगे कि ईद के बाद ये किस तरह अपना दिन गुजारते हैं, किस तरह अपने अहल खाना के साथ बातचीत करते हैं, और बाकी क्या क्या मामलात हैं, आइए चलते हैं वो भी देखते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट हारून साहब, जो कि रेंजर्स पोस्ट के डिप्टी हैं, और इनसे जानेंगे कि आज ईद उल अज़हा का दिन ये अपने प्यारों के बगैर किस तरह गुजार रहे हैं, और आज के दिन ये अपने कौम के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, ठाक। सबसे पहले तो आपको ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। खैर मुबारक सर। अच्छा सर, बताइएगा कि आज कैसा जज्बा है कि पूरे मुल्क में लोग अपने अहल खाना के साथ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी कर रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन आप अपने अहल खाना को छोड़कर इस चेक पोस्ट के ऊपर आज भी अपने वतन की हिफाजत के लिए यहाँ पर मामूर हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये ड्यूटी के साथ साथ हमारी इबादत भी है। और हम पिछले जो हमारी अवाम है 25 करोड़ 24 करोड़ अवाम है, हम उनकी हिफाजत की, सरहदों की हिफाजत के लिए खड़े हैं, और ये एक इबादत भी है, और हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरुण साहब, हमने ईद कुर्बान की जो नमाज है ईद उल अज़हा की वो भी अदा की, और मुझे खुद बड़ी खुशी हुई, और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने नौजवानों के साथ, अपने इस मिल्लत के सपूतों के साथ ये ईद की नमाज़ पढ़ी। तो बताइएगा कि जब ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर दुआ और गले मिलते हैं इन्हीं दोस्तों के साथ, उस वक्त अपने घर वालों की कितनी तड़प आती है? जी याद तो आती है घर की, लेकिन अपनी कौम के लिए, अपनी कौम की हिफाजत के लिए ऐसी हज़ारों ईदें, लाखों ईदें कुर्बान हैं। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त यहाँ बैठे हैं, जैसे अभी अरसलान ने हारून साहब से भी सवाल किए हैं, इसी तरह हम बाकी सबसे भी सवाल करेंगे और जानेंगे कि उनके लिए ये ईद डिफरेंट कैसे होती है। घर में तो सबकी ईदें नॉर्मली सेम ही होती हैं, तो इनकी यहाँ पे ईद कैसी होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सिपाही अजहर महबूब। अजहर, मुझे ये बताइएगा कितना टाइम हो गया फौज में आए? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए। 5 साल हो गया। और 5 सालों में कितनी ईदें आपने घर गुजारी? तकरीबन मैंने आधी से ज़्यादा ईदें इधर ही गुजारी हैं। आधी ज़्यादा इधर ही गुजारी हैं। जी। तो कैसा लगता है, बुरा लगता है कि घर वालों से हम दूर हैं, और याद आती होगी घर वालों की? घर वाले भी कहते होंगे घर आके ईद मना लो। नहीं, घर वालों से तो दूर हैं, लेकिन इधर ईद का अपना ही मज़ा होता है, कितना मजा होता है। लेकिन घर वालों को मिस तो करते ही हैं। ये तो बात है, जाहिर है। अच्छा, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं? अनमैरिड। अनमैरिड हैं। चलिए, फिर भी थोड़ा गुजारा हो जाता होगा, यहाँ ज़्यादा ही अच्छा लगता होगा आपको। जी। अच्छा, ये बताएं मुझे कि यहाँ पे
کیا ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے؟ آپ لوگ ظاہر ہے سب ساتھ رہتے ہیں یہاں پہ تو دوستی بھی اچھی ہوتی ہوگی، تو شغل میلہ لگاتے ہیں آپس میں، کس طرح سے دن گزارتے ہیں؟ جی ہم لوگ ادھر اپنا شغل میلہ لگاتے رہتے ہیں اور بھائیوں کی طرح رہتے ہیں سب، کوئی لڑائی جھگڑا کوئی کچھ نہیں کرتے۔ تو عید کا دن کس طرح سے الگ ہوتا ہے؟ باقی دن ساتھ ہی رہتے ہیں، تو عید کے دن کیا کرتے ہیں؟ عید کے دن وہی کرتے ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، مطلب کھانا کھونا بناتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں، عید گوشت مل جاتا ہے وہ بھی کھا کو لیتے ہیں۔ اچھا، تو قربانی یہاں پر قربانی کا تو سسٹم کیا سسٹم ہے یہاں پہ قربانی؟ نہیں، قربانی ادھر ہمارے رینجر ہیڈ کوارٹر میں کرتے ہیں اور گوشت ہمیں بھیج دیتے ہیں۔ تو ابھی کھانا بنانے کی بات کی، آپ میں سے کھانا کون بناتا ہے یہاں پہ؟ ہم تقریباً سارے لوگ ہی بنا لیتے سارے ہیں۔ مل کے بناتے ہیں، کوئی جی۔ اسپیسیفک نہیں ہے کوئی کھانا بنائے؟ نہیں، ایک لڑکا ہوتا ہے جو کنٹینیو کرتا رہتا ہے کام، اچھا، تو وہ ان میں سے کون ہے جو کنٹینیو؟ وہ جی ہے عاطف۔ عاطف کو مائک دیجیے گا ذرا۔ السلام علیکم عاطف۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک۔ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، کھانا بناتے ہیں آپ؟ جی بہت پیارا بناتے ہیں۔ اچھا کھانا بناتے ہیں؟ سب جی۔ سے اچھا کیا بنا لیتے ہیں؟ سب سے پشاوری چاول بنا سکتے ہیں، دوسرا کڑھائی بنا سکتے ہیں۔ جی تو اب آپ تو یہاں پہ پٹھان ہیں، تو یہاں پنجابی ہیں جو وہ پشاوری آپ کے چاول کھا لیتے ہیں؟ میں نے سنا ہے پشاور کے کھانے پھیکے پھیکے ہوتے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ یہ کہہ رہے کہ یہ چاول بہت پسند کرتے ہیں، یہ ہم یہ بہت کھاتے ہیں۔ تو پھر جب یہ لوگ ان میں سے کوئی کھانا بناتے ہیں، تھوڑا اسپائسی کھانا بناتے ہوں گے آپ، تو میں نے سنا ہے تھوڑا لائٹ کھانا کھاتے ہیں، تو وہ زیادہ اسپائسی تو نہیں لگتا؟ اچھا نہیں اس طرح نہیں ہوتے، بس سارے جب 9-10 بجے ہمارا کھانا تیار ہوتے ہیں، بس وہی ٹائم افسر اور وہ ڈپٹی سے کچھ آتے ہیں، کوئی کدھر سے، تو سب مل کے اکٹھے کھانے کھاتے ہیں۔ پٹھانوں کی روایات ہیں یا پھر وہاں کا جو کلچر یہ ہے کہ وہاں پر خواتین جو ہیں وہ سارے کام کرتی، وہاں پہ آپ نے کوئی کام نہیں؟ نہیں اس طرح سر ہم کام سارا کچھ پنجابیوں کے لیے ہے بھائی، ہم تو کام بھی کرتے ہیں، پھر ہمیں تو نہ ہی پوچھے کیا کیا ہوتا ہے۔ نہیں، جب اس طرح کر زبردست مل گئے تو پھر لازمی ہم نے اس کے ساتھ کام شام تو کرنے ہیں۔ اگر معصوم مل گئے تو پھر نہیں کرتا، اگر ہم سے اوپر تھوڑا سے چڑھائی مڑائی کرتے تو پھر ہم۔ کتنی عیدیں گزر گئی ہیں ایسے؟ ادھر تو ہماری یہ 6 سال سروس ہے اور 4 عید ادھر گزار گیا، تو ہمارے ساتھ 2 کلومیٹر ادھر دشمن پڑے اور الحمدللہ ہم نے عید کی نماز پڑھ کے، تو اس کا کے لیے اس طرح ڈپٹی سن انجام دیتے، اس کی طرف ہم وہ ہماری طرف آنکھ بھی نہیں دکھا سکتے۔ کیا بات ہے۔ اچھا جب آپ بالکل یہاں سے 400 میٹر دور ہمارا دشمن ہے، تو جب آپ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا سینہ ایسے چوڑا کر کے کھڑے ہوتی ہیں، تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بس وہ تو ہم سے ڈرتے کہ یار ہمیں اٹھا نہیں سکتے، یا یہ نہیں کر رہے، یہ وہ نہیں کرتے، وہ ڈرتے۔ ہم 4 بندے ہوتے، وہ اگلے 10 11 20 بندے ہوتے۔ انڈیا والے تو ہمیں دیکھتے 3 فٹ 4 فٹ ہمیں نظر آ گئے، اگر ہم اسے بھی اس کے سامنے آ جاتے، وہ ویسے ہم سے ڈر جاتے۔ شفیق مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جیسے انہوں نے بھی بات کی ہے کہ گھر میں تو ہمیں کب بھی نہیں اٹھاتے تھے، تو سروس کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے آپ کی؟ میرا 3 سال ہو گیا۔ 3 سال ہو گئے، تو 3 سال ہو گئے ہیں سروس کو۔ 3 سال سے پہلے تو یہ اتنا آپ کو پریکٹس نہیں ہوگی گھر کے کام کرنے کی، یہاں تو آپ کو سارے کام بھی خود کرنے پڑ جاتے ہیں، تو کبھی کوئی ایسا سین ہوتا ہے کہ آپ فرسٹریٹ ہو جائیں گے، یار کیا سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، یہ کس جگہ پہ آتے ہیں؟ نہیں، ادھر تو بندے کا روٹین بن جاتا ہے، کیونکہ سارے کام کرتے تو پھر بندے کو اچھا نہیں لگتا کہ آپ ویسے بیٹھ جاؤ اور باقی بندے کام کریں، تو ہم سب جو ہے نا مل کے کام کرتے ہیں، جو بھی کام ہوتے ہیں، مطلب روٹی پکانا، سالن بنانا، برتن دھونا، جو بھی ہوتے ہیں ہم اکٹھے کرتے ہیں۔ یہ تو سنت نبی بھی ہے کہ اپنے بیویوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ کام کریں، تو اس میں کوئی جو ہے نا حرج والی بات نہیں ہے۔ جی عبداللہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ سنیں سر آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، بڑے خوش اخلاق ہیں۔ جب آف دا کیمرہ بھی آپ سے باتیں ہو رہی تھی تو آپ کہہ رہے تھے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں اپنے جو وطن کے، آپ کے جو یہاں کے واسی ہیں، ان واسیوں کو، شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی میں السلام علیکم، جو یہاں کے جو رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ہم ان کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں سے دور بارڈر پہ کھڑے تعینات ہو کر 24 گھنٹے کے لیے دائمن سائرن ہیں، اور یہ لوگ بالکل بے فکر ہو کے اپنی عید کی خوشیاں منائیں۔ ہم ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ پیچھے شادی کی باتیں ہو رہی تھی، یہاں سے ہم سٹارٹ کیا ہے کہ کوئی جورو کا غلام، کوئی کہتا ہے میں بنوں گا، کوئی نہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرڈ ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی شادی کے پیچھے کوئی مجھے تھوڑی سی وجہ سننے کو ملی ہے کہ آپ کی شادی کس طرح ہوئی ہے؟ کوئی اس میں تھا کہ آپ فوجی ہوں گے، یا پھر ہماری بھابھی نے یہ کہا تھا کہ میں نے فوجی سے ہی شادی کرنی ہے، ادروائز میں ساری زندگی بیٹھ جاؤں گی، میں نے شادی نہیں کرنی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ جو میری مسز ہیں ان کا
था कि जो मेरा हस्बैंड बने वो फ़ौज में होना चाहिए, तो और घर वालों को भी यही था कि बच्चा जो है फ़ौज में हो जी, तो इसलिए मैंने फ़ौज ज्वाइन की और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है। फौज ज्वाइन की, फिर मोहब्बत स्टार्ट हुई, फिर शादी हुई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर फौज आप ना, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को कि कुछ ऐसी मुहिब्बुल वतन हमारी माशाल्लाह प्यारी लड़कियाँ पापा की परियाँ होती हैं कि जो बिल्कुल अपने फ़ौजियों से इतनी मोहब्बत करती हैं। वो कहती हैं कि जब तक मेरी ज़िंदगी में कोई फ़ौजी जो है वो नहीं लिखा जाएगा तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। तो यही जनाब मिसाल जो है वो अब्दुल्ला साहब के साथ है कि अब्दुल्ला साहब जो हैं उनकी शादी ही तब हुई कि जब उनकी अहलिया ने पहले कहा था कि मैं, बाद में ये आए हैं फ़ौज में लगे हैं, और उसके बड़ी एक यार इंटरेस्टिंग स्टोरी है यार कि बाद में ये फ़ौज इन्होंने ज्वाइन की है, फिर शादी हुई और अभी ये बड़ी ही खुश तरीके और सुन्नत नबवी के साथ, मतलब कि एक मुसलमान जिस तरह अपनी अहलिया के साथ इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारता है वो गुजार रहे हैं। तो मरियम आप ये बताएं कि आप भी यूनिवर्सिटी में हैं या फिर आप भी इस कल्चर में रह रही हैं, तो लड़की कितना डिस्कस करती हैं कि मेरा जो मनपसंद बॉय है वो फौजी होना चाहिए? यार ये तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है लड़कियों में। मुझे लगता है कि लड़कियों को फौजी वैसे ही बहुत पसंद होते हैं। आप कभी लड़कियों की डिस्कशन देख लें, ये अलग बात है कि आपने शादी करनी है नहीं, लड़कियों को फौजी वैसे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, आपस की बात है। अच्छा, मैं अभी अब्दुल्ला भी बता रहे थे कि घर वाले चाहते थे आपके कि आप फौजी बने। आपके बच्चे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं जी। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके बेटे भी आगे फौज में आए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो एक बेटे का नाम कैप्टन रखा हुआ है कि ये जब बड़ा होगा तो कैप्टन बनेगा इंशाल्लाह, और एक को जो है डॉक्टर अच्छा, आपने बनाऊंगा। पहले ही अपने बेटे का नाम कैप्टन रख जी दिया? कैप्टन और अभी तक और आपकी ये ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह आपने उसको कैप्टन बनाना? जी इंशाल्लाह, वो इंशाल्लाह कमीशन अच्छा, ज्वाइन अब्दुल्ला साहब, करेगा। यहाँ पे और एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर कहीं और से ऑफर आ जाए कि वो भी कोई कहे कि मैंने भी कुछ फौजी और अच्छा फौजी जो ऐसे चौको चबन और बहुत ही एक्टिव है उसके शादी करनी है, तो कहीं, क्योंकि इस्लाम में तो इजाज़त है जी, 4 शादी जी। की, तो कोई इस तरह की ऑफर है अभी बड़ी है कोई? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, मेरी हाँ पहले ही भाई, अल्हम्दुलिल्लाह एक और पसंद की बात शादी हो रही है, तो भाभी जो है वो भी इस हवाले से घर से भी और भाभी की तरफ से, आपकी भाभी की तरफ से भी बहुत सख्ती है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अली, मुझे ये बताएं कि अभी जंग की सूरत हाल गुजरी है, हमने तो सोशल मीडिया पे टीवी पे ही जंग को देखा है, लेकिन आपने बहुत करीब से देखा है। वो जो एक फीलिंग होती है कि हो सकता है कि मैं अब शहीद हो जाऊं, वो क्या फीलिंग थी? थोड़ा एक्सप्लेन करें हमारे नाज़रीन को, ताकि उनको पता चले कि एक फौजी जब जंग लड़ रहा होता है तो उस टाइम पे इस सारे एरिया में क्या सूरत हाल होती है, क्या पैनिक की सिचुएशन होती है या नहीं होती है, और जो आपका एक शहादत का जज्बा उभर के आता है वो क्या होता है? जी बिल्कुल, सिविलियंस के लिए तो पैनिक की सिचुएशन होती है, लेकिन मैं अक्सर भी अपने जवानों को एड्रेस करता हूँ, ये जो वर्दी हमने पहनी है ना, ये कफन है, यानी जब कफन पहन लिया तो फिर कोई उसमें नहीं है कि हम जिंदा रहेंगे चले जाएँ। और जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है सब, तो हमारा ये ईमान है कि आगे की ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छी होगी अगर हम शहीद हुए। तो एज आवर स्लोगन से डायमंड सायरन, इसका मतलब है कि हम हर दम तैयार हैं। तो उसमें डे नाइट की कोई नहीं थी, मतलब कि हम दिन को भी उधर ही बिल्कुल डटे हुए थे और रात को बैठे हुए थे। ये हमारे पीछे मोर्चे आपने विजिट किए होंगे, उधर हम दिन रात डिप्लॉय थे, ठीक है। और हम टू बी वेरी फ्रैंक अगर हम बताऊँ तो हम इंतज़ार में थे एक दफ़ा आए सही, और हम उनको भरपूर जवाब दें। क्या बात है, क्या जज्बा है। अच्छा, तो क्या सिचुएशन क्या थी यहाँ पे कि अभी आप ऑफ द कैमरा भी बता रहे थे कि हाँ ज़मीन पर लेटे थे मोर्चों के अंदर, वो क्या सिचुएशन थी? जी बिल्कुल, जब ऐसे मतलब सूरत हाल बन जाती है तो फिर हमें वो कुछ नहीं होता कि हम बेड पे सोए हैं या ज़मीन पे सोए हैं। तो बाकी गांव वगैरह ये लोग खाली हो गए थे सारे, तो हम सिर्फ आगे रेंजर्स वाले थे, साथ हमारी आर्मी भी डिप्लॉय थी। तो उसमें यही था कि ज़मीन मिल जाए, जो मतलब खाने को मिला खा लिया, कोई उसमें ये नहीं था कि, क्योंकि सबको पता है कि जंग का माहौल है, इसमें हमने अपनी ड्यूटी को मतलब फर्स्ट पे रखा है, ये चीज़ें फिर मतलब नहीं काउंट होती। अच्छा, यहाँ पर अली साहब बताइएगा कि जंग के दौरान जिस वक्त कशीदगी चल रही होती है, पाक भारत हमारी कशीदगी होती है, तो कितने दिन तक आप जो है वो भूखे भी रहते हैं या फिर भूखे रह चुके हैं आप? जी बिल्कुल ऐसी है, जैसे आपने कोट किया भूखे रहने का, तो मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि इसका काउंट नहीं होता ये चीज़ें। इवन के एक दिन ऐसा कहते जब मतलब ज़्यादा मतलब अटैक हो गया था रात को, हम क्योंकि मैसेज के थ्रू में पता चला कि ये वाघा पे अटैक हो गया, फायर शेयर खुल गया, तो उस टाइम ना मतलब हर बंदा अलर्ट था। उस टाइम फिर खाने की नहीं थी किसी को कि खाना खाया नहीं खाया, वो हम तकरीबन 1-1.5 दिन ना मतलब बगैर खाने के, लेकिन फील किसी को नहीं हुआ था कि हमने नहीं खाया, क्योंकि हर बंदे के मतलब दिल में एक वो जज्बा था कि हमने ये ना आए, हम बेशक भूखे रह लें, इनको इंशाल्लाह हम जवाब दें, तो वो चीज़ें नहीं काउंट। हाँ जी, अभी माइक असमतुल्लाह साहब की जानिब पकड़ाइएगा। असमतुल्लाह साहब से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने भी मूंछें रखी हुई। हमने भी एक मूंछों वाला देखा था जिसको हमने बड़ी जो कि इज़्ज़त अफजाई उसकी करने के बाद उसको वापस भेजा था, तो इधर से हमारी मूंछें भी माशाल्लाह 4 की मुझे नज़र आ रही हैं। असमतुल्लाह साहब कैसे हैं आप?
जी बिल्कुल ठीक ठाक आज अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी गुजर रही है, हमें बहुत खुशी हो रही है कि तमाम भाइयों के साथ ईद हम गुजार रहे हैं इकट्ठे। कोई टेंशन नहीं है, हमें घर की कोई याद नहीं इतनी आ रही, क्योंकि इधर भी हमारे भाई सारे इकट्ठे हैं। हमने ईद की नमाज़ पढ़ी है, हम खुशियाँ मना रहे हैं, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इधर भी वक्त गुजर रहा है, घर में भी रिश्तेदार होंगे, वो भी हमें कोई उनकी टेंशन नहीं है, वो भी अपनी खुशी एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कभी मुझको को ताव भी दिया है दुश्मन को देख के कि आओ ना एक दफ़ा इधर? जी बिल्कुल, ये तो वैसे सुन्नत के खिलाफ है मूछें रखना, लेकिन दुश्मन के सामने जो है ना, वो बंदे में हिम्मत और जज्बा पैदा होता है कि मूछें बड़ी बड़ी हो, दुश्मन इससे खार खाता है, डरता है। दुश्मन, ये एक दहशत होती है कि दुश्मन के सामने मूछों को थोड़ा हाथ लगाएं तो दुश्मन इससे डरता है कि ये इसने बड़ी बड़ी मूछें रखी हुई हैं, कि पाकिस्तानी बहुत हिम्मत और जुर्रत और जज्बे वाले लोग हैं, नौजवान इनके बहुत डरते नहीं हैं किसी तरह के भी, किसी तरीके से भी डरते नहीं हैं। कितना अर्सा गुजर गया आपकी सर्विसेज को यहाँ पे इस चेक पोस्ट पर? मुझे इस चेक पोस्ट पे तो हो गए हैं तकरीबन 20 दिन हो गए हैं। अच्छा, हमें रोटेट करते रहते हैं ना, वो एक पोस्ट पे 10-20 दिन 15 दिन या एक महीना रहने के बाद दूसरी पोस्ट पे भेजा जाता है, ताकि वो ड्यूटी एक दूसरे को रोटेट भी किया जाए। छुट्टियां का मसला होता है, एक जवान छुट्टी जाता है, फिर उसकी जगह पे दूसरे को उस पोस्ट पे भेजा जाता है ड्यूटी के लिए। ठीक है, तो आज आप फिर कुर्बानी का गोश्त भी बड़े मज़े के साथ खाएंगे, तो घर फिर वापसी कब होगी? जी बिल्कुल, कुर्बानी का गोश्त तो हमने बहुत मज़े से खाया है। इंशाल्लाह घर भी चले जाएंगे, कोई इतनी परेशानी नहीं है। छुट्टी का जब टर्न बनेगा तो घर भी हम अपने रिश्तेदारों से भी मिल लेंगे। जब हम घर जाते हैं तो वो खुशी का ही लम्हा होता है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। ईद पे नहीं छुट्टी मिली तो नो टेंशन, हम इधर खड़े हैं जज्बे और हिम्मत के साथ दुश्मन के सामने। हमें कोई किसी किस्म की टेंशन परेशानी, नो टेंशन। अच्छा जी, आमिर है और आमिर से पूछेंगे कि आमिर मुझे ये बताएं कि आज ईद का मौका है तो कोई रूटीन शेयर करें, सुबह नाश्ते में क्या खाया था और अभी दोपहर को जो गोश्त है वो कौन बनाएगा, क्या बनेगा खाने में, रात का खाना क्या होता है और ईद के अलावा खाने के मेन्यू में क्या होता है आप? सुबह सवेरे जो आदमी हमारे इधर पोस्ट पे होते हैं वो सुबह सवेरे उठ कर उन्होंने नमाज़ पढ़ी है, और जो रूटीन की ड्यूटी बाहर की होती है हमारी, वो सभी लोग वापस आ गए थे। इधर हमने स्वीट सीमियाँ बनाई थी, सुबह सवेरे सब ने मिलकर बैठ के इधर सीमियाँ खाए हैं। फिर हमने ईद की नमाज़ अदा किया है। उसके बाद हमने जो है ना दोपहर के खाने का अरेंज किया है। हमें जो हेडक्वार्टर से गोश्त आता है वो बनाया है, तो वो बना के सब ने मिल के खूब इंजॉय किया, खाया है। ठीक है, और अब रात के खाने में क्या होगा और इसके अलावा फिर क्या मेन्यू होता है ईद के अलावा? रात के खाने में गोश्त तो लाजमी होगा ही, तो उसके साथ हम पुलाव बना लेंगे। तो जो सबकी राय होती है वही इधर बनता है। तो आज भी आतिफ ही बनाएंगे गोश्त या कोई और बना लेगा? जी आते भी बनाएंगे, सब मिल के उसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आज तो बड़ा दिन है, तो यार इतना अरेंज वो एक आदमी नहीं कर सके, काफ़ी आदमी होते हैं हम इधर, तो उसकी हेल्प करेंगे 2-3 आदमी हम। अच्छा, आपस में यहाँ पर आप कोई अपनी कोई शेर व शायरी या कोई गेम भी आपकी होती है, या फिर कोई थोड़ा सा कोई एक्टिविटीज़ जो हैं जिसमें आप अपने आप को थोड़ा सा इंजॉय महसूस करवा सकें, अपने आप को लुत्फ़ अंदोज़ कर सकें? बस इधर जब हम सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो जो हम इधर आप गपशप होती है, हंसी मजाक होता है, तो वो हमारी इंजॉयमेंट है। जी, अभी हमारे साथ हमारे जो नौजवान हैं वो मुजाहिद साहब मौजूद हैं। मुजाहिद साहब से भी उनकी फीलिंग्स जानते हैं कि मुजाहिद साहब क्या कहना चाहते हैं। आज सुबह बात हुई है कोई आपकी अपने घर वालों के साथ? जी बिल्कुल हुई है। तो क्या गपशप हुई है? यही गपशप हुई है, उनको ईद मुबारक दिया, उन्होंने हमें हौसला दिया है कि हम आपसे दूर नहीं हैं, इधर पाकिस्तान में ही हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, अपने मुल्क की हिफाजत करनी। ठीक है, और फिर कोई घर वालों से कोई ऐसी बातचीत कि उन्होंने कहा हो कि आप बाद में आ जाएं या कोई ईद गुजार के आ जाएं, कोई थोड़ी सी कोई डिस्कस हुई हो? नहीं, उन्होंने ऐसी बात तो नहीं की है। इंशाल्लाह मेरा टर्न बन गया है छुट्टी का, अभी ईद के 20 दिन बाद जाऊंगा छुट्टी। और कब से आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं? 9 साल से। 9 साल से जी। 9 सालों में कितनी ईदें आपने ऐसे ही अपने नौजवानों के साथ गुजारी अपने वतन की हिफाजत के लिए? तकरीबन 5 साल तो इधर ही ईद की है। अच्छा जी, हमारे साथ शेर साहब मौजूद हैं और एक चीज़ नाज़रीन मैंने नोटिस किया है कि अपने जवानों से जब भी हमने शादी के बारे में पूछा, बड़ी शर्मीली सी मुस्कान है कि इनके चेहरे पे आती है। तो शेर साहब, मुझे लग रहा है कि आप मैरिड हैं, मैरिड हैं आप?
मैरिड मैरिड हैं आप। चलिए, मुझे लग रहा है कि आप तो नहीं शर्माएंगे फिर शादी के बारे में जब बात करेंगे। अच्छा मुझे बताइए, बच्चे हैं आपके? एक बच्चा है, 2 बच्चियाँ। 2 बच्चियां और 1 बच्चा है। तो क्या फीलिंग्स होती हैं? मुझे लगता है कि जब शादी को थोड़ा ज़्यादा टाइम गुजर जाता है और बच्चे हो जाते हैं तो फिर बच्चों की बहुत ज़्यादा आपको याद आती होगी। बिल्कुल तो जी, बच्चों की बहुत याद। अब्बू घर आ जाएं, छुट्टी लेके आ जाएं, ईद हमारे साथ गुजार लें। मैंने नोटिस किया कि जिन बच्चों के वालिदैन फौज में होते हैं वो बच्चे हर वक्त यही कहते रहते हैं ज़िंदगी हमारी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वालिदैन साथ नहीं होते हैं, अब्बू नहीं होते, या किसी की वालदा भी अगर फौज में वो भी नहीं होती, तो वो कहते हैं कि ज़िंदगी मुश्किल है, कि कब किस टाइम उनको कॉल आ जाती है, किसी टाइम हमारे साथ ईद नहीं गुजारते, शादियों पे हमारे साथ नहीं होते। तो क्या फीलिंग्स होती है? बच्चे कहते हैं कि घर आए, बच्चे कहते हैं घर आए, लेकिन हम वतन को छोड़कर तो नहीं जाते। हम वतन की खातिर बरती हुए हैं, हम वतन के खातिर दुश्मन के सामने खड़े हैं, शाना बिशाना। तो अब आपका अपना भी दिल नहीं करता कि घर जाएं? चलो वतन की हिफाजत के लिए तो आप खड़े ही हैं, लेकिन दिल तो कहीं ना कहीं करता होगा। दिल तो करता है, लेकिन हम नहीं जा सकते। तो आखिरी छुट्टी कब गुजार के आए? आखिरी छुट्टी 1 माह हो गया। 1 माह हो गया, तो मतलब अब तो आपको लेट छुट्टी मिलेगी, आप इधर ही हैं। हाँ, ईद के बाद जाएंगे छुट्टी इंशाल्लाह। चले नाज़रीन, हमने सबके जो कि फर्दन हमने इंटरव्यूज थोड़े से किए, उनकी जो फीलिंग्स थी वो जानी ईद के हवाले से, या फिर जो ईद का दिन कैसे गुजरता है। तो थोड़ा सा हम इंटरटेनमेंट की जानिब जाते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा अच्छा गुनगुना लेता है, कौन सा हमारा जो फौजी नौजवान है वो कोई शायरी किसी को डेडिकेट करना चाहे, या फिर इनके साथ थोड़े से तंज़ो मज़ाक के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? मेरे ख्याल में अरसलान, इनसे पहले मेरा एक सवाल है आप सबसे ही, मेरा एक सवाल है कि आप लोगों में से कौन सा ऐसा कोई है आप लोगों में से जिसकी एक आदत सबको बुरी लगती है? कोई एक आदत ऐसी और कोई एक बंदा ऐसा जिसकी एक आदत सबको बहुत बुरी लगती है? कोई है इस तरह? वो हमारा पठान भाई है, आतिफुल्ला नाम है इसका। हमने मुर्गे रखे हुए हैं और ये जनाब जो है ना चोरी छुप के उसके अंडे खाते हैं। सारे अंडे खा जाते हैं। हाँ, और ये देखा फिर ये अंडों का असर भी उनके चेहरों की लालगी से जो है ना वो नज़र आ रहा है। और आतिफ साहब जो हैं बड़े एक्टिव भी हैं, और उसके साथ साथ आई थिंक ये अंडों का ही कमाल है, और अंडों ने इतना आपको एक्टिव शायद आतिफ रखा हुआ है। जाहिर सी बात है, हाँ पठान तो वैसे माशाल्लाह सही होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अंडों की खूबसूरती तो जो है ना वो फिर चेहरे पे तो निकलेगी, तो माशाल्लाह जो है ना। अच्छा, कोई एक आदत किसी की जो सबको पसंद हो बहुत? वो भी आतिफुल्ला की है। आतिफ सबके फेवरेट लग रहे हैं मुझे। आतिफुल्ला में एक आदत है कि किस काम का बोल दे वो ना नहीं करता। शेर एक मैं सुनाऊंगा। शेर सुना दो, चलो शेर। न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न तुम इतने हंसी होते न हम तुम पे फिदा होते। क्या बात है, क्या बात है। ठीक, सब शादी तो नहीं ना हुई अभी? नहीं, अभी तक इरादा नहीं है। आतिफ साहब, कुछ तो आपके पास टैलेंट की तो मेरे ख्याल में कोई कमी नहीं है, कुछ आप बोले ना। नहीं, हमें ज़्यादातर पश्तो के गाने सुन रहे हैं। आप पश्तो में सुना दें भाई, कोई बात नहीं। चले यार, मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा अपने व्यूवर्स से कि जो हमारे पश्तून भाई हैं ना वो इनका पश्तो का गाना सुने और उसको शेयर करें, और कमेंट में जरूर बताना है कि आतिफ ने कैसा गाया। बिल्कुल ऐसे ही है। Bibi Shirini zjeli guli labandiva Chava surshal judala suna Bibi Shirini। क्या बात है। तो नाज़रीन, ये था आज हमारा ईद शो और ईद का दिन जो हमने अपने फ़ौजी नौजवानों के साथ गुजारा है, और आगे भी गुजारेंगे। आगे चल के आपको दिखाते हैं कि मोर्चों पर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं इनकी। उम्मीद करती हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, क्योंकि अरसलान मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। बिल्कुल ऐसे मेरी खुद ज़िंदगी की पहली ईद थी जो अपने नौजवानों के साथ थी, और बहुत कुछ यहाँ से लर्न भी किया है कि अपने वतन की खातिर कैसे मर मिटने का जज्बा, और यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ों अकारब को बुला देना, और इनके चेहरों की मुस्कुराहट जो है वो बता रही है कि इनके अंदर वतन की मोहब्बत किस तरह कूट कूट के भरी हुई है। और अपने इस मिल्लत के नौजवानों का ये जज्बा देकर, और मेरे ख्याल में ना सिर्फ ये जज्बा इनके अंदर होना चाहिए बल्कि मुझ समेत आप में और तमाम पाकिस्तानियों में ये जज्बा होना चाहिए। और मैं अभी ये सोच भी रही थी अरसलान के सोशल मीडिया पर बैठकर कमेंट्स कर देना तो बहुत आसान चीज़ होती है। बिल्कुल ऐसे कि फौजी ये और फौजी वो। वैसे तो अब हमारे फौजी हर किसी में मकबूल है पाकिस्तान में माशाल्लाह से। जंग का जो सिलसिला हुआ और फिर जो हमने ज़बरदस्त शिकस्त दी है इंडिया को उसके बाद, लेकिन यहाँ पर आके अगर आप देखें तो लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है। स्टिल इनके चेहरों पर मुस्कुराहट है, इनका जोश इतना, मोरल इतना हाई है।
तो बहुत अच्छा लगा इनके साथ बात करके, इनके साथ बैठ के। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अपनी राय का इजहार आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ हमें इजाज़त दें और एक दफ़ा फिर से ईद मुबारक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद।